آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ۔ آج 21واں روزہ اختیار کیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے رخصت ہوا ہے ہم سے کہ تیسرے عشرے کا یعنی جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے وہ آ گیا ہے۔ اور اس عشرے میں آپ جانتے ہیں کہ 5 طاق راتیں ہیں جو ممکنہ شب قدر ہوتی ہے۔ آج وہ پہلی طاق رات تھی جسے ممکنہ شب قدر کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عطا فرمائی اور اپنے پیاروں کے ذکر کے ساتھ عطا فرمائی۔ اور اب جب ہم حاضر ہوتے ہیں اذان کے بعد تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کے وہ عالمی شہرت یافتہ ریلیجیس اسکالر موجود ہیں جو ہمارے استاذ گرامی بھی ہیں، ہماری بہت رہنمائی فرماتے ہیں، ARYQ-TV کے کانٹینٹ ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا خوبصورت انداز ہے آپ کے سمجھانے کا۔ میرے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرامز ہوئے، بہت مختصر وقت میں کئی سوالات کے جوابات بڑی روانی کے ساتھ ماشاءاللہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیا کرتے ہیں۔ میری مراد قبلہ مفتی محمد عامر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج ہم نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب پر جس طرح آپ سوالات ترتیب دیتے ہیں کمال ہے، میں تو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں اس میں سوالات کی نوعیت، موضوعات کا انتخاب اور اس میں جتنے خوبصورت سوالات اور گفتگو آپ تک پہنچتی ہے اس کے پس پردہ مفتی محمد عامر صاحب ہوتے ہیں۔ آج جو پروگرام پیش کیا گیا اس میں بہت اچھے انداز، میں چاہتا ہوں اس کا کچھ خلاصہ آپ اگر عنایت فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے۔ ہاں بالکل، آج کا دن بڑا اہم ہے، کئی نسبتیں ہیں، شب قدر کی نسبت بھی ہے، رمضان کی نسبت بھی ہے، عشرہ جہنم سے نجات کی نسبت بھی ہے، اور حضرت علی سے خاص طور پہ نسبت ہے۔ تو اب ہر ایک پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے حوالے سے ایسی گفتگو ہو جس میں ساری چیزیں خود ڈسکس ہو جائیں۔ کیا بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ بھائی کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن علی سے جدا نہیں ہے۔ کیا لم یتفرقا حتی یرد الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ساتھ ساتھ آئیں گے۔ تو علی کا جو تعلق ہے قرآن سے، یہ میں خاص اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی سے محبت کرنا، علی سے تعلق رکھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن علی کا کس سے تعلق تھا یہ دیکھا جائے۔ کیا بات ہے، یہ خاص علی کے چاہنے والوں کے لیے یہ بات تو ہے کہ آپ جس پہلو پر بھی بات کرتے ہیں کہ نئی جہت ہمارے سامنے مستحضر کر دیتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے پورا پروگرام کیا ہے، لیکن یہ جہت اب آپ کے آنے کے بعد یہ مستحضر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کمال یہ ہے کہ رمضان کا اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بے شک رمضان کی نسبت کس سے؟ قرآن سے۔ اور قرآن کی نسبت کس سے؟ اللہ علی سے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں بات؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ شب قدر کا ذکر کیا تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو شب قدر کی نسبت کس سے؟ قرآن سے۔ اور علی کی نسبت کس سے؟ قرآن سے۔ اللہ۔ تو اب ہم ویسے 12 مہینے علی کا ذکر کرتے ہیں، کیا بات، جو علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن علی کرنے کا جو رمضان میں مزہ ہے، علی کا ذکر کرنے کا، سبحان اللہ، کیونکہ علی کی نسبت ہے رمضان سے اور قرآن سے۔ تو جب علی کی نسبت رمضان اور قرآن سے ہے تو 21 رمضان یوم شہادت، کیا بات ہے مفتی صاحب، ایک بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اتنے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ایسی جہتوں پر اتنے مختصر وقت میں بات کی ہے کہ کمال ہو گیا ماشاءاللہ، اور طبیعت سیراب ہو گئی ہے کہ قرآن کے ساتھ جو حضرت علی کا تعلق ہے، حدیث رسول، اور حضرت علی کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر بھی آ گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جیسی آیہ مبارکہ بھی آ گئی۔ ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز آ گئے ہیں، آپ کی اجازت سے اگر ہم اجازت ہو تو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، آپ کی QTV میں کچھ علماء پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، اور کچھ علماء کو میں نے پڑھتے سنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو زیر زبر پیش میں بہت تبدیلی ہو جاتی ہے، مجھے یہ جو دعا ہے اس کا صحیح ایبریویشن بتائیے گا کیسے پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جی فرمائیے۔ جی، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ تہجد اور تراویح نماز
दोनों की नीयत नफिल में होगी या सुन्नत की नीयत करके पढ़नी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएं? दूसरा सवाल क्या था, कौन सी नमाज? तहज्जुद की जो नियत और तरावी की। जी यहाँ ये दुआ है, कुरान पाक में भी मौजूद है, QTV पे अक्सर चलती रहती है। इसका सही तलफ़ुज़ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसना। अच्छा सुन लीजिए, आतीना है, आतीना पढ़ रही है ना, आपको ये गलत है। बहन बार बार पढ़ रही है आतीना। आतीना जी, तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसना, ठीक है। हसनतों व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन वक़िना नार। अज़ाबन्नार। तहज्जुद की नमाज के हवाले से बहन ने सवाल किया जी, जी। कि किस नीयत से पढ़ें। तरावी की नीयत से पढ़ें, जी जी, तरावी को तरावी की नीयत से पढ़ेंगे, तहज्जुद को तहज्जुद की नीयत से पढ़ेंगे। ठीक है, तरावी अलग चीज़ है, तहज्जुद अलग चीज़ है। ठीक है। लिहाजा जो है वो नीयत उसी की जाए जो पढ़ी जा रही हो, ये अफजल है। अच्छा अच्छा, और एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइएगा सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे औरतों के रोजे छूट जाते हैं तो जब वो दोबारा रोजे रखती हैं, मतलब रमजान शरीफ के बाद, जी, तो जी। उनको पहले इन रोजों की कज़ा देनी होती है या नफली रोजे रख सकती हैं? ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि जो नापाक कपड़े होते हैं, जब हम उनको पाक करते हैं तो उनके जो छींटे वगैरह उठ के कपड़ों पे आ जाते हैं, तो फिर क्या हमें दोबारा गुस्ल और अपने कपड़े पाक करने होंगे? ठीक है। और कोई सवाल है आपका? बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। जी, रोज़े जो मखसूस अय्याम में तर्क हो जाते हैं उनकी कज़ा की जाएगी। ठीक है। और अफजल ये है कि पहले कज़ा रोज़े रख लिए जाएँ, फिर नफली रखे जाएँ। अच्छा ठीक है, मसलन आपके ऊपर मेरा कर्जा है तो आप मुझे पहले कर्जा उतारेंगे, फिर तोहफे देंगे। फिर तोहफे दें। क्या बात, तो पहले जो बहुत है अच्छी मिसाल दी आपने। पहले कज़ा रोज़े रख लिए जाएँ, वो फ़र्ज़ थे। तो फ़र्ज़ का दर्जा पहले होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात। मतलब नफिल रोज़े रखें, फिर पता नहीं ज़िंदगी वफ़ा करे ना करे, तो जो मौका मिला है पहले फ़र्ज़ उतार दें, ठीक है। फिर नफली रोज़े। एक और जो सवाल था उनका मैं चाहता हूँ उस पर भी कुछ एक कला- सवाल बहन ने कहा कि नापाक कपड़े जो होते हैं उसको, उसके जी हाँ। हवाले से। तो नापाक कपड़े जिस्म पे लग जाएं या कहीं से नापाकी लग जाए तो उस जगह को या उस हिस्से को कपड़े के कपड़े पे लगाए तो कपड़े के उस हिस्से को, जिस्म पे लगाए तो जिस्म के उस हिस्से को धोना पड़ेगा, गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ यहाँ पे गैर मुस्लिम है हमारे साथ। ठीक है, जो हमें खाना बना के देते हैं वो भी गैर मुस्लिम है और जो साथ बैठ के खाते हैं वो भी गैर मुस्लिम है। ठीक है। तो उन्हीं बर्तन में हम भी खाते हैं, उन्हीं बर्तन में वो लोग भी खाते हैं। तो क्या ये जायज़ है? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। जी मुफ्ती साहब। यहाँ देखें, काफिर को जो नजिस कहा गया है ना, तो उनकी निजासत बातनी है, बात नहीं है। कुफ्र की निजासत है, अकीदे की निजासत है, अच्छा अच्छा, नज़रिए की निजासत है। मतलब काफिर को आप जिस्म टच करेंगे तो गुस्ल फ़र्ज या नापाक नहीं हो जाएंगे। नापाक नहीं होगा। तो लिहाजा अगर गैर मुस्लिम है उसके साथ बैठ के खा लिया तो खाना खाना हराम नहीं है। अगर उसका पका हुआ खाया, यानी कि उसने अगर पकाया, मतलब इसमें यह एहतिमाल ना हो कि कहीं गैर मुस्लिम का ज़बिया हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन मुसलमान ममालिक में रहते हैं और मुसलमानों का ही ज़बिया है और ये पता है कि मुसलमानों के बाज़ार से ही वो चीज़ लाए हैं, बल्कि ख़ुद ये लोग लेकर आते हैं और फिर दे देते हैं, वो पकाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। हर्ज नहीं है। ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि ज़कात अगर हम देना चाहें तो उस बंदे को लाजमी बताना है कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं, या अगर देखें उनका एक पर्दा रख लें हम लोग, ठीक है, तो वो हम ना बताएं ज़कात के बारे यानी में। एज ए गिफ्ट अगर दे दें। ठीक और है। दूसरा जी, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हम मतलब ये कि वितर छोड़ देते हैं हम लोग हाँ, रमज़ान के महीने में कि हम सहरी में मतलब उसके साथ पढ़ लेंगे तहज्जुद के साथ। अपना तहज्जुद के साथ। हाँ तहज्जुद के साथ ठीक है, ही। ठीक है। तो तहज्जुद के साथ पढ़ लेंगे तो फिर अगर हम जब वितर पढ़ते हैं, पहले तहज्जुद पढ़ते हैं फिर बाद में वितर और फिर दो नफिल पढ़ते हैं, तो वितर की जब नियत करते हैं तो उसमें इशा की नमाज अदा करनी चाहिए कहकर, या फिर तहज्जुद का ही जिक्र करना जी चाहिए? जी, वो तो ईशा ही की वितर तो है। क्या फरमाइए मुझसे साहब। ज़कात के हवाले से मेरी बहन ने सवाल पूछा कि क्या बता के देना ज़रूरी होता है। ज़कात बता के देना ज़रूरी नहीं होता, बिना बताए भी आप ज़कात दे सकते हैं। बस ये तहकीक होना ज़रूरी है कि जिसको दी जा रही है वो मुस्तहिक है। तो अफजल ये है कि मुस्तहिक को दी जाए तो रिस्पेक्ट के साथ दी जाए, तोहफे के तौर पे दी जाए, ईदी के तौर पे दी जाए, इनाम के तौर पे दी जाए,
मगर ज़कात कह कर देना अफजल नहीं है। अच्छा, ज़िम्नन एक सवाल मैं शामिल कर देता हूँ आपकी जानिब से, चूँकि जो मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है 2-3 महीने से लोग परेशान हैं। मुफ्ती साहब, बहुत से लोगों की ऐसी भी ज़कात है कि जो रमज़ान के बाद उनको अदा करनी है, तो अगर इस वक्त अदा कर दें, बिफोर टाइम कर दें, तो क्या ये मुनासिब अदा हो जाएगी? अगर कोई शख्स बिलफर्ज जो है वो 10,000, 20,000, 30,000 कोई भी अमाउंट जो है वो ज़कात की नीयत से देता है जो उस पर ड्यू नहीं है, ठीक है, और वो ये नियत करता है कि जब मुझ पर ड्यू होगी तो इसमें से वो मैं मिन्हा हो जाएगी। मिन्हा कर दूंगा, ठीक है, तो ये दुरुस्त है। दुरुस्त फिर उसमें से बिलफर्ज उसके ऊपर 10,000 ड्यू हुई और दी हुई थी 30,000, तो अभी भी 20,000 उसकी एडवांस पड़ी हुई है जो आइंदा सालों में होने वाली ड्यू में से मिन्हा हो मिन्हा हो जाएगी। जाएगी, तो ज़कात एडवांस दी जा सकती है। एडवांस दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा जो सवाल था इनका, दूसरा सवाल ये था कि वितर की नमाज जो है ना, रमज़ानों में लोगों की आदत होती है तहज्जुद पढ़ते हैं बाकायदा, माशाल्लाह अच्छी बात है, कई लोगों ने सवालात किए हैं, और अफजल यही होता है कि जो तहज्जुद पढ़ता है तो वितर जो है वो तहज्जुद के साथ पढ़े, ये अफजल है, ये लाजिम नहीं है। अफजल है, लाजिम नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी फ़ुक़हा कराम ने कहा लिमन यसिकल वसूक, जिसको लिमन यसिकल इंतबाह, जिसको यकीन हो कि मैं वितर छोड़ के सो जाऊंगा और उठ भी जाऊंगा, हाँ, तो उसके लिए छोड़ना अफजल है। अच्छा, लेकिन जिसको डाउट हो कि मैं ना उठ सकूं तहज्जुद में तो वितर भी जाएंगे, वाजिब है, तो वो वितर मौकूफ़ ना करे। अब अगर वितर मौकूफ़ किए हैं तो पहले वितर पढ़ेंगे तरतीब में, और फिर उसके बाद जो है वो तहज्जुद पहले तहज्जुद पढ़ी जाएगी, फिर वितर पढ़ी जाएगी, और नीयत जो है वो वितर की होगी, वो एक ही होती है जैसे आपने जिक्र किया। वो तो इशा की या तहज्जुद की वितर कोई नाम तहज्जुद नहीं की दिया कोई जाता, ठीक है। वितर अलग अलग नहीं होते, वही एक ही वितर होते हैं। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई। देखिए, वितर चूँकि वाजिब है तो उसको मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई कि लोगों का ख्याल ये होता है हम जल्दी उठ जाएंगे, और अगर उस वक्त आँख खुली कि जब बहुत कम वक्त रह गया और आपने सहरी भी करनी है तो फिर आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सवाल बताइए। वालेकुम जी सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे मुफ्ती साहब से एक ज़कात के बारे में मसला पूछना है। जी जी, फरमाइए। तो सर इस तरह है कि अगर मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? बिल्कुल जी, मुझे ये पूछना कि पहले मेरा कुछ प्रॉपर्टी थी, घर थे, तो उसके ऊपर से जो रेंट आता था उसकी मैं ज़कात पे करता था, ठीक है जी, ठीक है। और अब वो घर मैंने बेच दिए हैं, तो वो उसकी ना तो किराया मुझे उसका नहीं मिल रहा, और जो आगे मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली है उसके पैसे जो मैंने वक्फ करके रखे हुए हैं, मतलब वो रजिस्ट्री के लिए या जो भी मामला है, लेकिन जो पैसे मेरे पास आए हैं उसमें 1 साल अभी नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या जो पैसे मेरे पास पड़े हैं या उसकी ज़कात बनती है, या जब मैंने आगे से प्रॉपर्टी ले ली तो उसके ऊपर से मुझे इनकम आएगी उसकी मैंने प्रॉपर्टी के पे करनी है ज़कात? ये ज़रा प्लीज़ मुझे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में ये शऊर है और ये फ़हम है कि दीनी मसाइल के हवाले से मुफ्तियान दीन से रुजू करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जी मुफ्ती साहब, क्या फरमाइए। अच्छा, इनका जो है ना सवाल ये है कि अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो ज़कात एक तो हमने बात की कि एडवांस देना चाहे दे सकते हैं। इनका गालिबन सवाल ये था कि जब साल नहीं हुआ तो क्या मुझ पे ड्यू होगी। जी जी, तो देखिए, अगर एक ही कंटेंट के तहत अमाउंट आ रही है, आपके पास एक आई थी इब्तदा में जिसको साल हो गया जी, और उसी कंटिन्यूटी में जो अमाउंट आपको आ रहा है तो वो साल के दरमियान भी आता रहा है, बिल्कुल, तो वो एक ही निसाब काउंट होगा, अगरचे के साल नहीं हुआ। लेकिन आपके पास एक निसाब किसी और मद में पड़ा हुआ था या नहीं था, बाद में आपके पास अचानक कोई रकम आई जिसका उस रकम से, उस निसाब से, उस जहत से कोई ताल्लुक नहीं था, या फिर आपके पास पहले कोई निसाब ही नहीं था, तो दोनों सूरतों में उस बाद में आने वाली रकम पर तब तक ज़कात ड्यू नहीं होगी जब तक कि साल पूरा ना हो जाए। साल पूरा ना हो। किराए में ऐसा होता था, एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं लगा सकते। किराए में ऐसा होता है कि आपके पास किराए में से जो भी बचत होती है ना, जी जी, तो जो साल के शुरू में किराया आता था उसमें से जो बचा हुआ है और जो साल के आखिर में आया है वो सब जोड़ के फिर ज़कात दी जाएगी। ठीक है, वो आखिर में भी, लास्ट मंथ में भी आने वाला काउंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जहत से वो सारे पैसे आ रहे थे। ठीक है, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने मुस्तहक समझकर किसी को ज़कात दिया हो, ठीक है, तो सर मसला ये है कि अब मुझे पता चला है कि वो मुस्तहक नहीं है, ठीक है, और ज़कात मैं दे चुका हूँ, तो इस बारे में कुछ राय सर। ठीक है जनाब। जी मुफ्ती साहब। यहाँ देखें,
किसी को मुस्तहक समझ के ज़कात दी। देखें ज़कात देते वक्त जो है ना ज़ाहिरी हालत को देख के दी जाती है कि ये बज़ाहिर इसके जो मामलात हैं, कोई तिजारत, कोई नौकरी, कोई कारोबार या कोई इतना बड़ा इनका बिज़नेस या पैसा नहीं है, बल्कि मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है, तो ये ज़ाहिरी सूरत दे के आदमी अंदाज़ा करता है और दे देता है और ज़कात हो जाती है। अब किसी शख्स ने अपने आप को बज़ाहिर ऐसा रखा हो ताकि वो लोगों से जो वो धोखा दे के माल ले सके या झूठ बोला था, तो इसका ज़िम्मा उसी पर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। ठीक, यानी ज़कात अदा हो गई। जी हाँ, इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब, आप इत्मीनान रखें, मुफ्ती साहब ने जिस तरह फरमाया बिल्कुल आपकी तरफ से ज़कात अदा हो गई, और अगर कोई मुस्तहिक नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी सवाल बताइए। मुफ्ती साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल पूछना था कि एक बच्चा इत्तिकाफ के अंदर बैठा है, 18 साल की उसकी उम्र है, तो बाद में उसके वालिदैन को इत्तिकाफ से उठा। अच्छा, हम आपकी 18 साल उम्र है? जी जी, 18 साल। जी जी। दूसरा ये पूछना था कि उल्टी आ गई है रोजे की हालत में, इसका क्या हुक्म होगा? ठीक है, रोज़े की हालत अच्छा, में उल्टी आना। जी, पिछले मसले पे थोड़ा सा मज़ीद तबसरा बाकी था। वो ये था कि इन्होंने ज़कात दी और उसको पता है कि मैं ज़कात ले रहा हूँ और मैं मुस्तहिक भी नहीं हूँ, तो अब मुस्तहिक तक पहुँचाना उस लेने वाले की ज़िम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये ज़कात है और मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, ये मुस्तहिक के लिए मुख्तस है। ठीक है ना। और गैर मुस्लिमों के हवाले से मैंने जवाज़ का ज़िक्र किया था, अगली कॉलर की वजह से मज़ीद वज़ाहत नहीं कर सका कि इसको कोई पसंदीदा नहीं करार दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, इसको पसंदीदा नहीं कहा गया है कि कसदन बंदा जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो बैठे उठे दोस्ती करे, खाए पिए। हाँ, जैसे इन्होंने कहा मैं जॉब करता हूँ तो एक रिलेशन है और एक वास्ता पड़ता है, ठीक, तो ऐसी सूरत अलग होती है। और एक बंदा जो है वो ख़ास तौर पे मुसलमानों की महफिल छोड़ के गैर मुस्लिमों की मजलिस इख्तियार करे, बल्कि मुसलमानों में भी अच्छों की मजलिस छोड़ के बुरों की मजलिस इख्तियार करे, तो ये नापसंदीदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये उल्टी के हवाले से इन्होंने सवाल किया कि रोज़े में उल्टी आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, उल्टी मुँह भर हो और वापस उतार ले, तब जाके रोज़ा टूटता है, लेकिन मुँह भर भी ना हो और उतरे भी ना, तो दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, कहा तो ये जाता है मुफ्ती साहब कि जो खाया जा रहा है शहरी में, चूँकि आम 11 महीने में बकिया में ये आदत नहीं होती, तो लोगों को यहाँ तक पानी भी आ जाता है और उसके साथ थोड़ी सी खुराक भी आ जाती है, तो लोग तो इस बात की तरफ तशकीक होती है कि शायद रोज़ा टूट गया हमारा, तो इस हवाले से भी कुछ फरमा दीजिएगा। डकार की सूरत में या नहीं, डकार की सूरत में या मामूली सा जो पानी आ जाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, वो अगरचे के वापस भी चला जाए। ठीक है ना। मुंह भर जब हो और वो वापस ले और वो भी खाने की हो तो जाके रोज़ा टूटता है। ठीक है। तो अच्छा मुफ्ती साहब, चूँकि अब ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, इसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो एतकाफ़ में नहीं बैठ पाए, और उनके साथ ज़ाहिर है ये महीना तो साल में एक बार ही आता है, तो ऐसी सूरत हाल में एतकाफ़ की वो बरकतें किस तरह हासिल की जाएँ? ज़ाहिर है घरों पर फैमिलीज़ में इतनी गुंजाइश निकालना, ये कर फरमाइए। मैं चाहता हूँ इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बात यहाँ पे इस मसले के ज़िमन में ज़िक्र करता हूँ। जी जी, कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, उस पर भरोसा रखें। क्या बात। और अल्लाह ताला आपके दिलों के और आपके जो ज़िंदगी के हालात हैं उसको जानता है, बेशक, आपकी नीयतों को भी जानता है। तो अगर आप मजबूरी की हालत में कोई थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो उम्मीद रखें कि वो आपको सवाब देगा। क्या बात है, आप समझ, ऐसे कई मामलात हैं। ये अच्छी बात है कि उलमा से पूछ लिया जाए, मशवरा भी कर लिया जाए, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि सवाब के मामले में, कबूलियत के मामले में अल्लाह ताला के बारे में हमें क्या गुमान रखना चाहिए, मतलब हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छी तवक्को रखनी चाहिए हमेशा। वो कहता है तुम मुझसे जैसी तवक्को करोगे वैसा पाओगे मुझे। तो अगर बंदा जो है वो इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में, वैसे तक एतिकाफ़ की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बहुत तकल्लुफ़ के साथ मखसूस अफराद को ज़्यादा गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस वजह से हो सकता है कि 10 या 15 अफराद की इजाज़त दी गई है, तो उससे ज़्यादा अफराद, सैकड़ों अफराद हमने तो देखा मसाजिद में हुआ करते थे, ना कर सके, तो वो अगर चाहें तो अपने घर में एतिकाफ़ करें। ठीक है।
گھر میں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ وہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، جو ان کی نیت ہے۔ اور اصل مقصد کیا تھا؟ رب سے جڑنا تھا، ہاں ہاں ہاں، کیا بات، رب سے جڑنا تھا، رب سے جڑنا، کیا تو بات، پھر وہ رب آپ کو ہر جگہ ملے گا، کیا کہنے اس سے تعلق آپ کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، چاہے گھر ہو چاہے مسجد ہو، اور یہ موقع تو بہت اچھا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ سارا سال ہماری خواہش رہتی ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ کوئی پروگرام ہو جو سوال و جواب کا ہو، تاکہ جس انداز میں اس جواب دینے کا فلو ہے ان کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھے انداز میں جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور آج جو چونکہ 21 رمضان المبارک ہے، شہادت حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے، تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آج ضرور اپنے بچوں کو حضرت علی کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، ان کے عظیم دینی خدمات کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کریں، گھر میں فاتحہ خوانی کا ضرور اہتمام کریں، اور کم از کم ایک بار الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر درود شریف اول آخر اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب کی والدہ مرحومہ حاجیانی عائشہ بائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ آج ان کی برسی ہے، اسی حوالے سے محفل بھی سجائی گئی ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے اور حاجی رؤوف صاحب کے والد گرامی اور حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس خاندان کے ARY فیملی کے دیگر تمام مرحومین کے درجات اور جمیع امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے گا، مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرمند فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر رحمت سار میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔